آئیے محترم ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان قوم و ملت کی محترم و نایاب شخصیت جو کسی طرح ہمارے اس علاقے میں اور ہندوستان کے باہر بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، جن کو جوانی کے عالم میں اللہ پاک نے عزتوں سے اور بڑی شہرتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے۔ یہ نوجوان علماء کرام جو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم کی خدمت میں، اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں کوشاں ہیں، یقیناً ان کے حق میں آپ سب دعا فرمائیں۔ آخری حصے میں مجلس کے اس مولانا کی تقریر کے بعد 5 سوالات کیے جائیں گے اور جوابات دینے والوں کو نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔ مولانا موصوف کو میں 2 شعر سے گزارش کروں گا۔ کیا جنہوں نے بھی دل بے قرار زہرا کا، کیا جنہوں نے بھی دل بے قرار زہرا کا، انہیں نہ بخشے گا پروردگار زہرا کا، انہیں نہ بخشے گا پروردگار زہرا کا، کہ خدا کرے کہ ہو تعمیر پھر وہیں روزہ، خدا کرے کہ ہو تعمیر پھر وہیں روزہ، تڑپ رہا ہے نشان مزار زہرا کا، تڑپ رہا ہے نشان مزار زہرا کا۔ ان مصروں کے سائے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جت الاسلام المسلمین ڈاکٹر محمد رفیع صاحب قبلہ حوض علمیہ کے اس وقت جو پرنسپل ہیں، الحمدللہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جوانی کے عالم میں انہیں بہت سے عہدے بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ ان کی عبادات کو، ان کی محنتوں کو، خدمتوں کو پروردگار قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ مولانا موصوف کے استقبال میں ایک بابا سے بلند صلوات دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ معزز ناظرین و ناظرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج کے اس طرحی مصالمے کا عنوان انہدا میں جنت البقیع ہے۔ میں اس سے پہلے کہ جنت البقیع کے حوالے سے کچھ مختصر معلومات آپ تک پہنچاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مختصر سی تقریر کا آغاز ایک سوال کے ساتھ کروں۔ سوال ہمارا نہیں ہے، بلکہ کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بار بار کچھ سچے مسلمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب کو بھیج دیا ہے تو پھر ہمیں قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت اور دوسری شخصیات کی ضرورت کیا ہے؟ میں ان کے سوال کے جواب میں ایک مثال کا سہارا لوں گا اور اسی مثال سے بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم کو اہل بیت کی ضرورت کیوں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسان اپنے باغیچے میں کوئی پیڑ، کوئی پودا اگانا چاہے تو وہ پودے کو اگانے کے لیے ایک بیج کا سہارا لیتا ہے، بیج کو خریدتا ہے اور اسے زمین پر ڈالتا ہے، اور بیج بھی طرح طرح کی ہوتی ہے، اسے جس طرح کی بو چاہیے، جس طرح کا پھل چاہیے، اسی مناسبت سے وہ بیج کا اور پھلوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر کوئی کسان بازار سے بیج کو خریدے اور گھر میں لا کر بیج کو بو دے اور اس انتظار میں رہے کہ مجھے طرح طرح کی بو ملے گی، مجھے طرح طرح کے پھل ملیں گے، تو وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کچھ چیزیں ضروری نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی بیج کو بو دے اور وہاں تک پانی کا انتظام نہ ہو تو پھر وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی بیج کو بو دے، خاک پر نہ بوئے بلکہ آنگن میں بچھے ہوئے ٹائلز پر بیج کو رکھے تو پھر بھی وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح سے وہ بیج کو کسی تاریک جگہ پر بو دے،
नूर का इंतज़ाम ना हो, सूरज की किरणें वहाँ तक ना पहुँचे, तब भी वो अपने मकसद तक नहीं पहुँच सकता। तो पता चला कि अगर किसान अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है तो सिर्फ बीज से नहीं पहुंचेगा, बल्कि उसे पानी का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, उसे खाक के अंदर बीज को पहुंचाना पड़ेगा और उसे नूर और रोशनी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। खुलासतन मैं यूँ कहूँ कि अगर कोई किसान अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है तो कुछ अवामिल की ज़रूरत है। जब तक वो अवामिल पूरे नहीं होंगे वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकता। कभी कभी होता यह है कि किसान अवामिल तो तैयार कर लेता है, लेकिन सिर्फ अवामिल से भी किसान मकसद तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि अवामिल के साथ साथ किसान के लिए कुछ मवाने से बचना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर पानी भी हो, मिसाल के तौर पर खाक भी हो और रोशनी का इंतज़ाम भी हो, लेकिन पानी सही तरीके का पानी ना हो, गंदा पानी हो, तो फिर वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकता। अगर वो जो कूद और जो उसके लिए गज़ा डालता है, अगर वो हद से ज्यादा डाल दे तब भी वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकता। पता चला कि एक बीज अगर उरूस तक पहुंचना चाहता है तो उसके अंदर कुछ अवामिल का होना जरूरी है और साथ में कुछ मवाने का ना होना जरूरी है। अब हम इंसान भी एक बीज की तरह हैं। अगर हम चाहते हैं कि तरक्की हासिल करें जो है और अपने मकसद में कामयाबी हासिल करें, तो बिल्कुल जिस तरह से एक बीज के लिए अवामिल और मवाने की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह से इंसान को भी अपनी तरक्की के लिए कुछ अवामिल की ज़रूरत है और कुछ मवाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने कहा हाँ, कुरान में अल्लाह ने अवामिल भी बयान किए हैं, अल्लाह ने मवाने भी बयान किए। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कहा अगर तरक्की चाहते हो तो अकीमुस सलात आतुज़ ज़कात, तुम नमाज पढ़ो, तुम ज़कात दो, तुम रोज़ा रखो। कुरान ने कुछ मवाने भी बयान किए हैं, कहा कि अगर तरक्की चाहते हो तो झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, तोहमत ना लगाओ। मैं कहूँगा कुरान में कुल्लियात बयान है। अगर हम सिर्फ कुरान की कुल्लियात को लेकर तरक्की हासिल करना चाहें तो हमारा दीन भी नाकिस रहेगा और हम मकसद तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। अल्लाह ने इसीलिए कुरान के साथ अहले बैत का इंतज़ाम किया है, इसीलिए हमको कुरान के साथ साथ अहले बैत की ज़रूरत है, ताकि कुरान की कुल्लियात को ले और अहले बैत के अक़वाल और उनके सीरत के ज़रिए से हम कुरान मजीद की जुज़ियात को समझे, तब कहीं जाकर इंसान तरक्की हासिल करेगा और अपनी दुनिया और आखिरत को सवार जो है सकेगा। इसीलिए रसूल इस्लाम ने जाते जाते ये इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो कीमती चीज़ों को छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब खुदा है, दूसरे मेरे अहले बैत हैं जो किताब खुदा को सही तरह से तुम तक पहुंचाएंगे। अगर इन दोनों का दामन थामे रहोगे तब कहीं जाकर तुम्हारी दुनिया भी आबाद होगी, तुम्हारी आखिरत भी आबाद होगी। देखिए, इंसान कभी कभी कुरान को अपने एतबार से समझता है। मिसाल के तौर पर मौलाना रूम ने अपनी किताब में, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर आपकी जहमत तमाम करने की कोशिश करूंगा। मौलाना रूम में अपनी मसनवी में एक जो है दास्तान बयान की। उन्होंने कहा कि एक मरतबा ईद के अय्याम करीब थे और बादशाह को ये खबर लेनी थी कि आया चांद नजर आया है या चांद नजर नहीं आया है। उसने बहुत सारे लोगों को एक सहरा में भेजा, कहा कि जाओ ऊंचाई पर जाकर देखना कि चांद नजर आया या नहीं आया। बहुत सारे जवान थे, किसी को चांद नजर नहीं आया, लेकिन उनके दरमियान एक ज़ईफ और बूढ़ा था, वो कह रहा था कि मुझे चांद नजर आ रहा है। लोग उससे पूछ रहे थे हमें तो नजर नहीं आ रहा है, तुम्हें कैसे नजर आ रहा है? वो बार बार आसमान की तरफ इशारा कर रहा था और ये कह रहा था मैं इतना बूढ़ा हूं और मेरी आंखें इतनी ज़ईफ हो चुकी है, इसके बावजूद भी मुझे चांद नजर आ रहा है, आप लोगों को चांद कैसे नजर नहीं आ रहा है? बहरहाल सारे लोग बादशाह की खिदमत में पहुंचे। बादशाह ने पूछा किसने चांद देखा? जवानों ने हंसा, जवानों ने कहा हमारी आंखें तेज हैं, हम जवान हैं, हमें तो चांद नजर नहीं आया, लेकिन ये एक बूढ़ा हमारे दरमियान था, वो बार बार ये कह रहा है कि मैंने चांद को देखा। बादशाह भी ताज्जुब में पड़ गया और सोचने लगा कि जब जो है बड़े बड़े जवानों ने नहीं देखा तो एक ज़ईफ ने कैसे चांद को देख लिया। वो उस ज़ईफ को करीब बुलाता है, बुलाने के बाद माजरा समझ जाता है। वो कहता है चचा, इससे पहले कि मैं आपसे जवाब पूछूं आप एक काम कीजिए, आप अपना लुआबे दहन लीजिए और अपने आंख पर मलिए।
बूढ़े ने अपना लौब दहन लिया, अपने आंख पर मला, फिर बादशाह ने पूछा अब बताइए चचा आपको चांद नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बूढ़े ने कहा अब तक तो नजर आ रहा था, लेकिन जब से मैंने लुआब दहन को अपने आंख पर मस किया है, घसा है, अब मुझे चांद नजर नहीं आ रहा है। बादशाह हंसता है और कहता है कि चचा वो चांद नहीं था, बल्कि आपकी उम्र की वजह से आपके अबरू का एक बाल आपके आंख के आगे आ गया था, आप ये समझ रहे थे कि वो चांद है। तो पता चला कि अगर एक बाल भी इंसान के आड़े आ जाए और उसके दरमियान में आ जाए तो वो गलत फैसले लेता है। तो अब ऐसे इंसानों के बारे में क्या कहा जाए कि जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, खादिम हरमैन भी कहते हैं, लेकिन उनका अकीदा ना तो रसूल से लिया हुआ है, ना तो अहले बैत रसूल से लिया है, बल्कि रसूल के बाद कई सदियों के बाद आने वाला एक मुनहरिफ आदमी के जिसका नाम इब्ने तैमिया था, वो लोगों का दावा है कि इब्ने तैमिया के अकीदे से वो सही दीन को समझेंगे। जिस तरह से एक बूढ़े ने अधूरी मालूमात और एक बाल के जरिए से चांद को देखना चाहा तो वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सका, बिल्कुल इसी तरह से ये अपने आप को सच्चे मुसलमान कहने वाले वहाबी चाहते हैं कि अपने अकीदे को इब्ने तैमिया से लेकर अल्लाह तक पहुंचे। ये इनका ख्वाबो ख्याल है, वह हरगिज अल्लाह तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इन्हीं गलत अकायद की बुनियाद पर उन्होंने 21 अप्रैल, जैसे कि अभी जनाब डॉक्टर नातिक अलीपुरी साहब ने आपके सामने बयान किया, 21 अप्रैल 1924 को उन्होंने एक गलत कदम उठाया और मुसलमानों की इज्जत पर हद के हुर्मत की, और उन्होंने रसूल के असहाब और आपके औलाद और आपकी अकलौती बेटी के मजार को ढाया। अब बारहा मजालिस में तकारीर में सुनते हैं कि बकी क्या है। बकी मदीने के अतराफ एक बाग था कि जिसमें गरगद के पेड़ थे। चूंकि वो गरगद के पेड़ कांटेदार होते हैं तो इसी मुनासिबत से उस जगह का नाम भी बकी पड़ा। और जंगे बद्र के बाद सबसे पहले जनाबे उस्मान बिन मज़ऊन की जब शहादत हुई तो रसूल इस्लाम के हुक्म पर वहां पर एक जगह साफ की गई और रसूल के हुक्म पर आपके सहाबी को वहां पर दफन किया गया। दफन करने के बाद रसूल इस्लाम ने अपने असहाब को जमा किया और ये ताकीद की कि कोशिश करना कि यहाँ पे दूसरे असहाब को भी दफन किया जाए ताकि ये कब्रिस्तान आबाद रहे। फिर उसके बाद धीरे धीरे तारीख में यह भी इख्तिलाफ पाया जाता है, बाज मुअर्रिखीन ने यह तहरीर किया कि सबसे पहले दफन होने वाले उस्मान बिन मज़ऊन नहीं थे बल्कि असअद बिन ज़ुरारा थे। बाद में मुअर्रिखीन एक नतीजे पर पहुंचते हैं और यह फैसला देते हैं कि जो लोग मुहाजिरीन थे, मुहाजिरीन में से सबसे पहले दफन होने वाले उस्मान बिन मज़ऊन है और अंसार में से सबसे पहले दफन होने वाले असअद बिन ज़ुरारा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब रसूल इस्लाम के फर्जंद जनाब इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो रसूल इस्लाम के हुक्म पर आपको भी जनाब उस्मान बिन मज़ऊन के पहलू में दफन किया गया। फिर वक्त के गुजरते गुजरते हमारे अइम्मा में से 4 अइम्मा की क़ुबूर वहां पे मौजूद है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। और कुछ रिवायतें कविया की बुनियाद पर शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी वहां पे दफन किया गया है। चूंकि ये जो है खुली हुई बात है कि शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दफन करने के बाद चूंकि खुदावंद आलम चाहता था कि जनाब शहजादी अल्लाह के राजों में से एक राज थी और खुदावंद आलम को यह मंजूर ना था कि शहजादी की कब्र भी सही तरीके से किसी को मालूम हो, लिहाजा अल्लाह के हुक्म पर जो है शहजादी की कब्र आज तक भी मख्फी है। कुछ जगह हैं कि जहां पर बोला जाता है कि इन कुछ जगहों में से एक जगह पर शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मदफून है। और इसी तरह से जो है जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और जनाब अकील बिन अबी तालिब, जनाब मिक़दाद, जनाब खुज़ैमा ज़ुश शहादतैन, जनाब ज़ैद बिन हारिसा, जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी जनाब उम्मुल बनीन और रसूल इस्लाम के कुछ अज़वाज और आपकी कुछ फुफिया इस जो है कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में मदफून है। लेकिन जो है
इस्तेमारी ताकतों से ये देखा नहीं गया, और उन्होंने इब्न तैमिया के बहाने से एक शख्स को तैयार किया कि जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब लानतुल्लाह अलैहा है। उसने एक जो है अपने शेख और अपने उस्ताद इब्ने तैमिया का बहाना बनाकर ये जुर्म अंजाम दिया, और जैसे ही ये जुर्म अंजाम हुआ दुनिया के हर कोने से एहतजाज बुलंद हुआ, चे शिया, चे सुन्नी, चे मुस्लिम, चे गैर मुस्लिम, सब ने एक आवाज बुलंद की और कहा कि जो काम सऊदी हुक्मरानों ने अंजाम दिया है वो इंसानियत के खिलाफ है। लिहाजा 8 शव्वाल को ये हमारे उलमा का शेवा है, जैसे कि मिलता है कि मरहूम सैयद अबुल हसन इस्फहानी और जो है नजफ और कुम के मशहूर उलमाए एज़ाम ने 8 शव्वाल को अपने दुरूस की तातीली का ऐलान किया, जो है सिलसिला आज भी चल रहा है। 8 शव्वाल को दुरूस को तातील किया जाता है ताकि दर्स बन करके हम एक एहतजाज बुलंद करें सऊदी हुकूमत के खिलाफ। और इसी तरह से आयतुल्लाह हायरी जो हौज़े इल्मिया के बानी हैं, उन्होंने इस दिन गिरिया किया और अपने दर्स को मुअत्तल किया। आयतुल्लाह बुरूजर्दी ने जो है एहतजाज के तौर पर अपना एक नुमाइंदा कि जिनका नाम आगा मोहम्मद तकी तालिकानी था, उनको मदीने तक भेजा और अपना पैगाम सऊदी हुकूमत तक पहुंचाया और ये ऐलान किया कि जो काम आपने किया है वो इंसानियत और मजहब और दीन इस्लाम के खिलाफ है। इंशाअल्लाह जब तक जन्नतुल बकी की तामीर नहीं होगी हमारा ये एहतजाज जारी होगा। हमें पूरा यकीन है कि जब वक्त का इमाम जाहिर होगा कि तो आपके दस्ताने मुबारक से इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी हतमी तौर पर तामीर होगा। इसी दुआ के साथ हम आपसे रुखसत लेते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम आकाई डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी साहब क़िबला। अपने मुख्तसर से वक्त में बड़ी खूबसूरत तकरीर, बड़ी मालूमाती तकरीर हमारे नाज़रीन के अज़हान आलिया तक पहुँचाई। आपकी खिदमत में हम लोग शुराए बज़्म मीसम और यहाँ के मौजूद हजरात आपकी खिदमत में शुक्र का नजराना पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको दुनिया की हर बला से महफूज फरमाए, आपकी